السلام علیکم دوستو، امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو دونوں جہاں میں خوش رکھے۔ کل میں نے آپ لوگوں سے 3 سوال کیے تھے اور میں آج پھر 3 سوال کروں گا۔ اس سے پہلے میں آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ ہمارے ویڈیو کو پورا دیکھا کریں، کیونکہ میں اپنی ویڈیو میں 2 یا 3 اسلامی سوال روزانہ کرتا ہوں، اس لیے آپ لوگ پورا ویڈیو دیکھا کریں اور سوالوں کا جواب کمنٹ میں صحیح لکھا کریں۔ تو میں کل 3 سوال آپ لوگوں سے کیے تھے۔ میں 3 سوال کیا تھا، اس سے پہلے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ بنی اسرائیل میں ایک بہت بڑا عابد رہتا تھا، عبادت گزار رہتا تھا، عبادت کرنے والا رہتا تھا۔ اس علاقے میں اس کا بڑا شہرہ بھی تھا، لوگ بڑے عابد کے نام سے جانتے تھے کہ بڑی عبادت کرتا ہے۔ وہاں پہ 3 بھائی بھی رہتے تھے۔ وہ تینوں بھائی اس عابد کی خدمت میں آئے اور آ کر کے عرض کی کہ ہمیں سفر درپیش ہے اور واپسی تک ہم تینوں جا رہے ہیں، تو ہماری ایک جوان بہن ہے، اس کا آپ خیال رکھیے گا۔ تو اس عابد نے کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہاری جوان بہن ہے، ہمارا پردہ ہے، فتنے کا خوف ہے، میں خیال نہیں رکھ سکتا۔ تو انہوں نے بڑی عرضی کی، بڑی ریکویسٹ کی۔ تو اس عابد نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں تمہاری بہن کا خیال ایسے رکھوں گا کہ اس کو قریبی گھر میں ٹھہرا دو، تو میں کھانا جو ہے روزانہ اپنے عبادت خانے کے باہر رکھ دوں گا، بس میرا اتنا کام ہوگا۔ باقی وہ بہن تمہاری آئے اور کھانا لے کے چلی جائے، میرے سامنے نہ آئے۔ تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، آپ بس اتنا ہی خیال رکھ لیں، یہ کافی ہے۔ اب عابد نے کیا کیا کہ روزانہ کھانے کے وقت کھانا پیک کرتا اور اپنے عبادت خانے کے باہر رکھ دیتا، اور وہ لڑکی آ کر کے لے جاتی۔ کچھ دنوں کے بعد شیطان نے اس عبادت گزار بندے کے دل میں ایک وسوسہ ڈالا، ایک خیال ڈالا۔ کہا کہ ذرا سوچو تو صحیح، جوان لڑکی اکیلے نکل کر تمہارے خانقاہ تک آتی ہے، اس کے بھائی بھی نہیں ہے، تمہیں خیال رکھنے کو کہا ہے۔ ایسا کرو کہ یہی کھانا تم اس کے گھر تک چھوڑایا کرو، تم اس سے ملاقات مت کرنا، بس اس کے دروازے کے باہر تم کھانا رکھ کے آ جایا کرو۔ اس عابد نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے۔ شیطان کا وسوسہ مانا اور ایک اسٹیپ آگے بڑھایا۔ اب اس عابد نے کیا کیا کہ روزانہ اس لڑکی کے مکان کے باہر جا کر کھانا رکھنا شروع کر دیا۔ کچھ دن ایسے ہی گزر گئے۔ پھر شیطان نے اس عابد کے دل میں ایک اور وسوسہ ڈالا، ایک اور خیال ڈالا۔ کہا کہ بڑے عجیب آدمی ہو، ایک اکیلی لڑکی بیچاری، اس کے بھائی بھی نہیں ہے، ایک کمرے میں بند پڑی رہتی ہے، اکیلے اس کا دل گھبرا جاتا ہوگا، تو آخر تم اس کی وحشت دور کرنے کی نیت سے کم اس سے کچھ بات چیت کر لیا کرو، کم سے کم اس سے کچھ بات چیت کرو گے تو اس کا کچھ دل بہل جائے گا۔ اب دیکھو، شیطان جو ہوتا ہے نا، وہ اسی طرح گناہ کی طرف مائل کرتا ہے، پہلے چھوٹی غلطی پھر بڑی غلطی، تو بندہ اس کے باتوں میں آ کر کس طرح بہکتا ہے، زمانے کا عبادت گزار۔ اس عابد نے کہا چلو ٹھیک ہے، لڑکے سے کچھ بات چیت کر لیتے ہیں۔ اب اس عابد نے کیا کیا کہ لڑکے سے بات چیت شروع کی، طبیعت پوچھی، حال پوچھا۔ وہ عابد روزانہ کھانا دینے جاتا اور 2-4 باتیں کر لیتا۔ اب جب نامحرم عورت کی آواز سنی تو اس کی سریلی آواز نے مزید اس کو اکسایا، اور اے مسلمانوں، آخر کار یہ معاملہ بڑھتے بڑھتے وہاں تک پہنچا کہ وہ ہو گیا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ بدکاری تک معاملہ پہنچ گیا، زنا تک معاملہ پہنچ گیا، اور اس عابد نے اس لڑکی کے ساتھ زنا کر لیا۔ اس عابد نے اس لڑکی کے ساتھ زنا کر لیا اور وہ لڑکی حاملہ ہو گئی، اور اس کی یہاں ایک بچہ پیدا ہو گیا۔ تو پھر شیطان نے اس عابد کے دل میں ایک اور وسوسہ ڈالا، ایک اور خیال ڈالا۔ کہا کہ یہ تو نے کیا کر دیا، اب اس کے بھائی لوگ آئیں گے تو وہ تمہیں چھوڑیں گے نہیں۔ اب ایسا کرو، اگر تمہیں اپنی عزت پیاری ہے
इस बच्चे को मार डालो, इस बच्चे को मार दो। उस आबिद ने क्या किया, उस मासूम बच्चे को कत्ल कर दिया, उस मासूम बच्चे को मार दिया। अब जब बच्चे को मारा तो फिर शैतान ने दिल में एक और वसवसा डाला, तूने बच्ची को तो मार दिया, लेकिन लड़की तो पूरा मंजर देख रही है, ये अपने भाई को बता देगी, इसे भी मार दो। अब उस आबिद ने क्या किया, उस लड़की को भी मार दिया। अब उस लड़की को भी मार दिया और दोनों लाशों को एक मकान के कोने में गड्ढा खोदकर दफन कर दिया और वापस आकर अपने खानकाह में बैठ गया, इबादत खाने में बैठ गया। कुछ दिनों के बाद उस लड़की के भाई लोग वापस आए और वापस आकर उस आबिद से कहा कि जनाब, हमारी बहन कहाँ है, हम आपके सुपुर्द करके गए थे, हमारी बहन कहाँ है। उस आबिद ने कहा कि आपकी बहन बीमार हो गई थी और फिर फौत हो गई, इंतकाल हो गई। एक कब्र पे ले गया और उस आबिद ने कहा कि ये आपकी बहन की कब्र है। भाई लोग रोते गए, रोते रोते फातिहा पढ़ा। फिर क्या हुआ, रात शैतान एक मुसाफिर की शक्ल में तीनों भाइयों के ख्वाब में आया, तीनों भाइयों के ख्वाब में आया और उस शैतान ने आबिद के तमाम सियाह कारनामे बयान किए और निशानी के तौर पर ख्वाब ही में तीनों भाइयों को वो कब्र भी दिखा दी जहां उस आबिद ने उसके बहन और बच्चे को दफन किया था। जब तीनों सुबह उठे तो एक दूसरे को अपने ख्वाब सुनाया तो तीनों को सेम ख्वाब, यानी एक ही जैसा ख्वाब तीनों को नजर आया था। तो कहा कि चलो जल्दी उस कब्र को खोदते हैं। अब जब कब्र को खोदा गया तो वहां उसके बहन और बच्चे की लाश मौजूद थी। वो तीनों आबिद पर चढ़ दौड़े और उस आबिद ने इकबाल जुर्म भी कबूल कर लिया और उन्होंने आबिद के दरबार में बादशाह का जो है वो मुकदमा पेश किया और आबिद के हुक्म पर, बादशाह के हुक्म पर उस आबिद को घसीट कर उसके इबादत खाने से बाहर निकाला गया। उसकी इज्जत का क्या हाल हुआ होगा। और उसको सूली की तरफ ले जाया गया, फांसी घाट पर लाया गया। तो फांसी घाट पर फिर शैतान आता है और कहता है उस आबिद से, ये अगर तू मेरी बात मान ले मैं तुझे फांसी से बचा सकता हूँ, मरता क्या न करता। उस आबिद ने कहा, बताओ क्या कहना चाहते हो। तो शैतान ने कहा, तुम खुदा का इनकार कर दो और मजहब इस्लाम से अपने आप को खारिज कर दो तो मैं तुम्हें बचा लूंगा। अब उस आबिद ने क्या कहा, मैं खुदा का इनकार करता हूँ और मजहब इस्लाम से अपने आप को खारिज करता हूँ और काफिर होता हूँ। जैसे उस आबिद ने इतना कहा, शैतान एकदम गायब हो गया और सिपाहियों ने उस आबिद को फांसी दे दिया। तो ऐ मुसलमानों, जरा सोचिए कि शैतान ने किस तरह चाल चला। ये बड़ी चूटी की रफ्तार से आता है, पहले छोटी बुराइयों में मुब्तला करता है, फिर वही छोटी बुराइयों पर इसरार करवाता है, कंटिन्यू करवाता है, आदत बना देता है। तो फिर एक वक्त ऐसा आता है कि वो बंदे को गुनाह लगता है, बंदे को वो बुरा लगता ही नहीं, इसलिए कि गुनाह करते करते दिल काला हो जाता है तो इंसान को गुनाह करना बुरा लगता ही नहीं। फिर शैतान बड़ी बुराई की तरफ ले जाता है और फिर वो करवा के जान छोड़ता है, बल्कि जान फिर भी नहीं छोड़ता, जान क्या ईमान तक ले लेता है। मुसलमानों, रिवायतों में आता है शैतान के बारे में कि शैतान इतना मरदूद है कि देखता है अगर कोई नेक बंदा है, बड़ा गुनाह नहीं करेगा तो छोटा गुनाह में लगाता है, और अगर छोटा गुनाह भी नहीं करेगा तो कुछ नेकियां कम करवाने की कोशिश करेगा। ये सुन्नतें छोड़ दो, ये नफिल छोड़ दो, ये जमात छोड़ दो, तो ये वो खबीस है जो हमारा फायदा कभी नहीं चाहता है। नहीं मुसलमानों, बल्कि रिवायतों में आता है कि जब बंदा पढ़ने लगता है तो दुनिया से जाते वक्त ये बड़ा मुश्किल टाइम होगा। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को मौत की सख्तियों से महफूज फरमाए। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। मिसाल के तौर पर आप थके हुए हो, आपके सर में दर्द हो, टेंशन हो, और उस वक्त आपसे कोई सवाल करे, समझ में आती है कोई बात, बंदा कहता नहीं अभी मुझसे कोई बात नहीं करो, अभी मुझसे कोई सवाल और जवाब नहीं करो। तो बड़ी गर्मी से जब आप आए हुए हो
पसीना बह रहा है, सर में दर्द हो, तो उस वक्त इंसान कहता है अभी मुझे छोड़ दो, अभी मुझसे कोई सवाल और जवाब नहीं करो, अभी मुझसे कोई सवाल और जवाब नहीं करो, अभी मुझे आराम कर लेने दो। तो ये दुनिया की सख्ती में इंसान की थोड़ी देर के लिए सोचने और समझने की सलाहियत खत्म हो जाती है, थोड़ी देर के लिए सोचने और समझने की सलाहियत खत्म हो जाती है। लेकिन मौत के वक्त उलमा फरमाते हैं मौत की सख्ती इससे ज्यादा है कि बंदे को आरे से चीरा जाए। मौत की सख्ती तलवार की 1000 वारों से भी ज्यादा सख्त है। मौत की सख्ती इससे ज्यादा है कि बंदे को कराह में उबाला जाए। और उस वक्त मौत के वक्त शैतान मुख्तलिफ रूप में आता है। जिसके बाप का इंतकाल हो गया होगा उसके बाप की शक्ल में आता है और कहता है बेटा हम मर गए, और मरने के बाद हमें पता चला ये इस्लाम धर्म अच्छा नहीं है, बेटा तू काफिर बन जा। होगा शैतान तकलीफ में, बंदा वैसे ही होगा, उस वक्त वैसे ही कुछ समझ नहीं आ रही होगी। और शैतान उस आखिरी वक्त भी, मौत के वक्त भी ट्राई करेगा, कोशिश करेगा कि किसी भी तरह इसका धर्म छीन लूं, किसी भी तरह इसका ईमान छीन लूं। ए मुसलमानों, इसलिए आप लोगों से मैं कहना चाहता हूँ शैतान के वसवसे में मत आए, शैतान के बहकावे में मत आए और अल्लाह की इबादत करें। अल्लाह ने जिस मकसद के लिए इस दुनिया में हमें भेजा है उस मकसद को आप पूरा करें। मेरा अल्लाह कुरान पाक में फरमाता है वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह फरमाता है कि मैंने इंसान और जिन्नात को सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया। अल्लाह ने हमें इस दुनिया में अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया है, हम इबादत क्यों नहीं करते? इसलिए मुसलमानों अल्लाह की इबादत करें। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह तबारक व तआला तमाम मुसलमानों को शरीयत मुस्तफ़ा पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हम तमाम मुसलमानों को शैतान के मकर फ़रेब से बचाए। तो मैंने कल आप लोगों से 3 सवाल किए थे, उससे पहले मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ अभी तक आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और हमारे इस वीडियो को लाइक भी करते हैं, हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। तो कल का सवाल क्या था? पहला सवाल था कि औरतों पर सबसे ज़्यादा हक किसका है? तो देखिए औरतों पर सबसे ज़्यादा हक उसके शौहर का है। और दूसरा सवाल था मर्दों पर सबसे ज्यादा हक किसका है? तो देखिए मर्दों पर सबसे ज्यादा हक उसके वालिदैन का है, उसके माँ और बाप का है। और तीसरा सवाल था वो कौन सा गुनाह है जिसको करने से कयामत के दिन उसके कान में जहन्नम का पिघलाया हुआ शीशा डाला जाएगा। तो देखिए वो गाना सुनने वाले को क़यामत के दिन उसके कान में जहन्नम का पिघलाया हुआ शीशा डाला जाए, गाना सुनने वाले। इसलिए आप लोग गाना सुनने से तौबा करें। और मैं आज फिर 2 सवाल कर रहा। पहला सवाल है कि कुरान शरीफ किस महीने में नाज़िल हुआ? कुरान शरीफ किस महीने में नाज़िल हुआ? और दूसरा सवाल है कुरान शरीफ में कुल कितनी सूरतें हैं? कुरान शरीफ में कुल कितनी सूरतें हैं? इन दोनों सवालों का जवाब आपको कमेंट में लिखना है। सही जवाब आप कमेंट में लिखें। इंशाअल्लाह मैं अगले वीडियो में आप लोगों का नाम लूँगा, इसलिए आप लोग सही जवाब कमेंट में लिखें। मुझसे बोलने में अगर किसी भी तरह की गलतियाँ हो गई हो तो आप लोग कमेंट में मेरी इस्लाह फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।